Hey everyone, welcome to Primary Market Chatter brought to you by Sunday Investing. This is the October first week IPOs edition part 2. We had done 3 IPOs in part 1 and we didn't want to do LG because honestly we wanted to wait for the anchor list and also it would have been probably too much to do everything together because these are big size IPOs. Today we closed, WeWork IPO closed today. Uh, Tata Capital is closing tomorrow and then LG day after tomorrow. And LG के साथ ही एक SME भी है Mittal Sections which is closing tomorrow. So we'll do this quick episode where we'll talk about Mittal Sections and LG. Before we get started, just want to highlight a couple of housekeeping items like always. One, we are not SEBI registered research analyst. कोई भी हमारा view qualified opinion नहीं है. You definitely do your own due diligence and then basis that take a call. This is only to help you know the fundamentals of the company and essentially think of it how we are, what we are planning to do with the company. And you would have seen we also have conflicting views at times. That is just to keep it honest. Like we works for that matter. Like we had a slight disagreement, not disagreement, but we had slight differing views. Then last week also we had a few differing views and we learned from each other. So definitely do what you understand. आप अपना करें. Think of it only as to understand the fundamentals of the company. And we are also just very naive and we are learning every day. So we would hope that we can learn from you. And it is more of a collaborative, shared environment that we are picking up from each other. With that, that is the first agenda. The second item which I want to speak about is if you haven't joined our YouTube for some matter, please go ahead and do that as well. Join our YouTube and then मेरे को एक और कमेंट आ गया कि प्लीज क्लोज व्हाट्सएप ओके आई हैव क्लोज व्हाट्सएप सो देयर विल बी नो टू but yeah, join our YouTube. The link is in the pinned comments, and then I am also going to post the uh, Instagram channel link as well. The Instagram channel is called Sunday Investing. It's sunday.investing. Instagram पे जाके आप वो सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा. Definitely follow us on Instagram as well. With that, maybe we'll get started. We will pick up Mittal sections first and probably wrap it up in the first 5 minutes and then do a long space on LG where we'll want to understand everything with respect to LG. So setting up Mittal Sections, incorporated in 2009, company is a manufacturer of mild steel sections and structural steel products, including MS flat bars, round bars, angles, etc., and a wide range of other solutions. It markets its products under the name MSL Mittal. So steel sections manufacturer company है. इसके बाद अगर बात करूं तो आईपीओ की इट्स अ बिग साइज आईपीओ 53 करोड़ का आईपीओ है. मार्केट कैप 165 करोड़ पे आ रहा है. तो 30% से ऊपर का डाइल्यूशन है विच इज स्लाइटली हायर. FY25 फाइनेंशियल्स की बात करूं तो रेवेन्यू 137 करोड़ था और पैट 3.6 करोड़ है. तो काफी महंगा है. लाइक 40 पी पे FY25 समथिंग लाइक दैट. क्रेजी पी ऑन 45 पी समथिंग लाइक दैट. एंड देन इन्हें 2 महीने का रिजल्ट दिया है कि जनता एन्युअलाइज कर ले प्रॉपरली एंड देन दैट इज हाउ दे लुक चीपर. बट for me that appears as a high watch, but we'll try and understand. In terms of the LM is Wealth Mind Networks. So over to you, Sachin, to talk about Mittal Sections. Am I audible? Yep. All right. So I'll give this one short. Nothing much to discuss, but let's start. So this Mittal Sections, they are operating since 2009 and 2010, and now over 16 to 17 years, they have managed to scale to this level. So what they do is they make these स्टील फ्लैट बार्स, राउंड बार्स, एंगल्स, चैनल्स, जो सब कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं स्टील के प्रोडक्ट्स, वेरियस इंडस्ट्रीज, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन इंडस्ट्रीज. तो ये सारे आइटम्स ये कंपनी बनाती है एंड प्राइमरली दे ऑपरेट इन गुजरात ओनली with majority of revenues coming from Gujarat. So and currently they have around 36,000 metric tons per annum capacity, which they are utilizing to around 75 to 77% for the for 2 or 3 years for 2 to 3 years before, and slowly they are trying to scale this up, and via IPO also they are looking to increase this capacity to 96,000 metric tons per annum, so more than 2.5 times expansion. So this is broadly on the business that they do. Now I'll directly jump to their financials.
In FY23, they did 167 CR of revenues, and that was with half a percent PAT margin. So around 0.5% PAT margin they operated in FY23. In FY24, the revenues were largely stagnant, only 161 CR, and the PAT margin was 1%. In FY25, the revenues fell more than 15 to 16%, around 137 CR, but the PAT margin grew to 2.5% this time. And we see a lot of tweaks in the financials, be it raw material costs, be it employee expenses, be it other expenses, all were done to show this high PAT percentage. And they have also shown 2 months financial for FY25, where they did 28 CR of revenues, and now the PAT percentage has again jumped to 5%. So now they are saying that we should maintain this percentage going ahead. And by doing all these tweaks in the financials, we see that the cash from operations is barely positive on the company. In FY25, it was around 14 to 15 lakhs, and now for FY26 2 months, it is suddenly 74 to 75 lakhs cash from operations positive. So this is largely on the financials. For coming to the risks of this business, 99% is from Gujarat, and that especially from this segment which has many local players, and it is a very regional thing for these steel bars and steel products that to make and supply to specific regions. And the company already has more than 2 times debt on their books. Going ahead, it is going to get reduced to some extent via IPO proceeds, but not very much significant. And there are some minor litigations as well, and the scale of the business is very minimal. Around 60 to 70 employees only are working for this business currently. Now for the IPO use, 20 CR is for capacity expansion that I mentioned. 5 CR is for loan repayment, so that should help on the interest, around 35 to 40 lakhs, and maybe even lesser post tax. And 15 CR is for working capital. Now, if we take those high margins for FY25, it's near 45 times on FY25. But I think the lead managers here have gone a step ahead, and they have already factored in the FY26 projections to some extent. And basis that only, I think that they have priced it at the current IPO price. So by that, if we go, it should trade near 17 to 18 times, that which is the SME standard recently. But that is on FY26, and we do not know actually what the figures will be. Specifically for the peers that they have shown in the RHP, there are very extreme peers. One is Retan TMT, and one is Surani Steels. So both of these trades near 100 times on PE basis, and both are largely stagnant in the revenues as well as on the margin front. Just the PE optically looks higher, and for that only these peers are mentioned in the RHP. Lead manager is Wealth Mind. This is their second issue, and first one was Repono. But Repono was largely better than this Mittal Sections, which is coming for the IPO. And no anchors in this issue. And the IPO structure is also unusual with only 5% QIB. So keep a note of that. Now coming to the final thing. आज देखा था कि मैंने GMP भी इसका था in the morning, and then it fluctuated, and now I see that it is back again to zero. Personally, I don't understand why this company is even getting listed. So if I do not understand that, I have no interest in this and won't touch it for now. That's all. Got it. Thank you, Sachin. It's just that दो ही कंपनियां थी, that is why we have to do Mittal Sections. Last week we were scrambling, somehow trying to make sure we can cover the most number of companies, but it is how the markets are, right? Like when you have a few companies coming in together and then there are lulls. So this time we just had two. That is why we did Mittal Sections. I'm also not interested in it. But yeah, with that, maybe we'll now start LG. Just want to highlight again one more time. This is not a qualified opinion. This is what we are planning to do with our IPO strategy. So keep that in mind before taking any decisions. We don't understand your situation. You don't understand our situation. So let's make sure that we learn the max. And I'm sure Tanmay was also at a space before this. I joined the last 2 minutes of that. So same thing was told by the speaker as well. That there's no shortcut to learning. There's no shortcut to wealth. And I have a wallpaper which essentially says the same thing, right? That if by chance there was free money available as well, nobody's going to come and put it in your pocket. So always there are hidden agendas. Kind of keep them in mind. Have an open view.
listen to everyone, but then take your own decision, take your own call for everything, and then be responsible for that call. What we try and do is just we try and uncover what we understand of the company. We are also wrong multiple times. We are also right multiple times. But yeah, that is what is with respect to Mittal Sections. Just want to again highlight that we are on Instagram. The link is in the pinned comments. आप Instagram पे हमको follow कर लें. We'll try and put more reviews there. We'll put reviews of IPOs, bigger IPOs as well, where we don't talk to promoters. Our own understanding in a minute. We'll try and start on that as well. Tanmay has been dilly-dallying on doing it, but yeah, we'll try and pick it up as well. With that, I'll kind of move forward and talk about the second company. Just setting it up, although it doesn't need any introduction. The company's name is LG Electronics India. It's a hot IPO. A lot of chatter has already been made about it. But incorporated in 1997, कंपनी एक मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, अदर देन मोबाइल फोन्स. ये B2B और B2C कंज्यूमर्स को इंडिया और आउटसाइड में सेल करता है. आउटसाइड इंडिया आई थिंक 6% ये मार्केट शेयर विच विल go up to around 10% according to the management in a few years. Company also offers installation services and repairs and maintenance services for their products. So consumer durables company है. TV वगैरह अपन ने देखा होगा, washing machine देखा होगा. So it kind of does that. AC, I don't know how much they do. Maybe Tanmay, this is a question for you when you explain. In terms of the IPO, it's a 11,500 crore IPO, 11,600 crore IPO, all of which is a OFS. Market cap 77,000 crores. So again, a very big IPO coinciding with Tata Capital closing tomorrow. Dilution is around 15%, all of which is a OFS. Promoters, South Korean promoters are getting an exit. Reminds me of Hyundai, which also was a OFS and was a 18,000 crore IPO. FY25 financials की बात करो तो revenue 25,000 crore. So very big company. Like it is very few that few days that such big companies get listed. This will probably be in the top 10 biggest IPOs of India, if I'm not wrong. Maybe then this is again a question when you cover it. In terms of the PAT of the company is 2,200 crores. 500 crore का PAT है. 24,000 crore का top line है. So around 8 to 9% PAT margin है. I'm sure कैश फ्लोस वगैरह कंपनी के बहुत अच्छे होंगे बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड कंपनी. एलएम की बात करूं तो एलएम, एक्सेस सिटी, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन एंड बोफाई, बैंक ऑफ अमेरिका. सो विद दैट ओवर टू तन्मय टू टॉक अबाउट एलजी. Is my voice clear? Yep. So, thank you everyone for attending one more space consecutively. और आज थोड़ा चेंज कर रहे, सबका था रिक्वेस्ट आप हिंदी में स्पेस करो, तो आप आज एलजी हिंदी में करेंगे, यू नो. सो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का सबसे बड़ा होम अप्लायंसेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है. Company is a market leader across washing machines, panel televisions, inverter, air conditioners, refrigerators, microwaves. कंपनी इंडिया का पहला फर्म है जिन्होंने 4K टेलीविजन्स लॉन्च किए थे, स्मार्ट टेलीविजन्स लॉन्च किए थे, OLED टेलीविजन्स लॉन्च किए थे. आपको मैं अभी दो चीजें बता देता हूँ. पहला इज मार्केट शेयर ऑफ देयर कोर 4 सेगमेंट्स एंड द रेवेन्यू शेयर. ठीक है, मार्केट शेयर में 33.5% मार्केट शेयर है वॉशिंग मशीन्स में इन इंडिया, 30% in refrigerators, 27.5% in panel televisions, and 20.6% in air conditioners. Okay, तो अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट पिछले 6 से 7 सालों से मेजोरिटी कैटेगरीज में आइदर नंबर 1 है, आइदर आई गेस 4 में से 3 जगह पे नंबर 1 है, और आई गेस एसीज में दे आर नंबर 2, बाकी जगह पे नंबर 1 है. अभी आपको मैं रेवेन्यू शेयर बताया तो फिर अपन वो रेवेन्यू की टाइप पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे. फ्रिज में दे हैव गॉट 27.5% रेवेन्यू शेयर ऑफ द होल रेवेन्यू. एयर कंडीशनर्स में 21.6%, वॉशिंग मशीन्स में 20.7%, टेलीविजन में 20.2%. तो ये चारों मिला के ऑलमोस्ट 90% हो जाता है, और अदर्स इज 10%. अभी ये 10% में आपका क्या क्या आ गया? वाटर प्यूरिफायर आ गया, वैक्यूम क्लीनर्स आ गया, माइक्रोवेव ओवन्स आ गए, आपके ईयरपॉड्स भी, इन्होंने ईयरबड्स भी रिसेंटली लॉन्च किया, वो भी है, और बहुत सारी चीजें. और इसके अंदर आपका इंस्टॉलेशन के चार्जेस हो गया, ऑपरेशन ऑन मेंटेनेंस हो गया, वारंटी हो गया, वो सब ये 10% में आ जाता है. कंपनी का मैं अगर सेल्स नेटवर्क की बात करूं तो 36,000 B2C टच पॉइंट्स हैं इनके, और दीज गाइज हैव आल्सो गॉट पार्टनरशिप्स विद योर विजय सेल्स, रिलायंस रिटेल, क्रोमा, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट एंड ऑल योर दिस. ये जो बड़े आपके मल्टी ब्रांडेड शॉप्स और एक्सक्लूसिव वीबीओज होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसके अंदर भी इनका टच पॉइंट्स होते हैं.
अभी इसका आईपीओ की बात करूं तो 11,600 करोड़ का आईपीओ है, कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। अभी दो चीज है कि ऑफर फॉर सेल क्यों हो रहा है, इसकी दो मेन चीजें। पहला, कैश फ्लोस। कंपनी हर साल अप्रोक्स 2,000 करोड़ का कैश जनरेट, कैश मतलब प्रॉपर कैश फ्लो, बैंक में कितना पैसा बचता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो। तो इनका 2,000 से 2,200 करोड़ कंसिस्टेंट कैश फ्लो, लाइक FY25 में दे जनरेटेड 2,200 करोड़ ऑफ अ कैश। उससे पहले 1,500 के, उससे पहले 1,300 के। अगर आप इनका अभी कैश पोजीशन देखो तो कंपनी पे 5,500 करोड़ कैश है, जो बहुत होता है। 550 भी बहुत होगा इस कंपनी के लिए। दूसरा, आ, इनका केपेक्स। ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का डबल कर रही है इन श्री सिटी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और वो इनका अराउंड 2,500 करोड़ का केपेक्स है, 2,500 से 3,000 करोड़ का, जो ये उसमें से आधा इंटरनल अक्रूवल से कर चुका है और अगले 2 साल में करेगा बचा हुआ, उसके लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा है। एंड तीसरा, वन मोर रीजन इज एलजी इस फ्रॉम आई गेस 28 ईयर्स इन इंडिया। तब से भी इन्होंने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं। And आपको मैं बताता हूँ, एलजी इंडिया इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंपनीज ग्लोबली जो 30 साल से किसी भी सेक्टर में डोमिनेंट पोजीशन पे हो। आप वॉशिंग मशीन देखो, टीवीज देखो, दीज गाइज आर डोमिनेटिंग फॉर लाइक 15 ईयर्स, यू नो। और किसी भी D2C इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड में ये काम करना इज नॉट easy, it is a very very tough task. So given the investments they have done, given the profitability and the large entity they have made, and given the cash flow position, offer for sale करना का सेंस बनता है। अभी मैं इनका फाइनेंशियल्स पे आ जाए तो फिर फ्यूचर प्लान्स सेपरेटली डिस्कस करेंगे। FY23 में 20,108 करोड़ का टॉप लाइन किया इन्होंने, रेवेन्यू किया। पैट किया 1,345 करोड़ और एबिडा 9.5% का एबिडा मार्जिन था। FY24 में 21,557 करोड़ का टॉप लाइन किया और 1,511 करोड़ का पैट किया, विच वॉज एक 7.5% का टॉप लाइन ग्रोथ, 10.4% का बिड्डा मार्जिन, तो अप्रोक्स 0.9% से इनका एबिडा मार्जिन बढ़ा। 25 में FY25 में 24,631 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2,203 करोड़ का पैट किया। अभी आप एक चीज देखो तो इनका एबिडा मार्जिन जो पहले 10.4 था वो 12.6% हो गया है, और मतलब बहुत ही अच्छा स्पाइक है नंबर्स के अंदर। और 14% का टॉप लाइन इंक्रीज है, जो बहुत अच्छा है। बट पैट आप देखो तो 50% ऊपर है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये पैट सस्टेनेबल है। तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इन्होंने 2000 अपने 19 और 20 के नंबर दे रखे, 18 के भी दे रखे। मतलब दिस इज नॉट इन आर शो, बट इन कंपनीज वेबसाइट पे भी है और इनके पुराने क्रिसिल रिपोर्ट भी पड़े, सो दे आर पब्लिकली अवेलेबल। तो आप देखोगे तो पहले इस कंपनी के मार्जिन 9%, वो कोविड के बाद 2-3 साल कम हुए और अभी वो बैक टू नॉर्मल, शायद इससे भी एक टाइम पे आधा % ज्यादा मार्जिन हुआ करते थे इनके। और इसका एक दूसरा रीजन ये भी ना कि एलजी इज अ प्रीमियम ब्रांड, ये का एक मास ब्रांड नहीं है, तो इनके मार्जिन आर एसेंशियली हायर। इनका दूसरी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज है ना, मोस्टली ऐसा करती है कि अपना प्रोडक्ट वो आउटसोर्स करा लेते हैं और अपने ब्रांड का तप्पा मार देती है। सो उनका लाइक वो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी अपना 8-10-15-20% ग्रॉस मार्जिन रखता हो। अगर आप खाली एसी कंपनीज के देखो तो वो 10-12% ग्रॉस मार्जिन वो अपने वेंडर्स को देती है। आपका जो छोटे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5-6% होता है, आपका वॉशिंग मशीन के अंदर अनदर 10% होता है। तो इनका ऑलमोस्ट 70% काइंड ऑफ स्टफ, 70-75% खुद बनाते हैं और बाकी ही आउटसोर्स करते हैं। उसमें आपका आई गेस मोस्टली वॉशिंग मशीन आता है और एसी आता है। तो इनका जो परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू विच इज आउटसोर्स फ्रॉम अदर थर्ड पार्टी वेंडर, दिस इज कंपेरेटिवली लेसर। और आप कंपेरेटिव लैंडस्केप देखोगे ना, फ्रैंकली बोलूं, इनका पूरे इंडिया में ना कोई कंपेरेबल पीयर नहीं है। मतलब एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, बीट लिस्टेड और अनलिस्टेड। वे आप अगर लिस्टेड में इनके पीयर देखो क्या दिए उन्होंने, हैवेल्स पहला पेयर ये दिया। हैवेल्स का आई गेस मोर देन हाफ रेवेन्यू है कि 60% इसका वायर्स से आता है। और उसके बाद दे आर इनटू ये डिफरेंट अप्लायंसेस, तो मुझे वो कंपेरेबल नहीं लगता है। If you go to second, which is Blue Star, majority revenue is from your ACs और ACs are coolers, और उसके अंदर भी B2B सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है ब्लू स्टार का। सॉरी, वोल्टास का भी एक्चुअली वोल्टास ऑल्सो, दोनों का सेम मिलर है। B2B से अच्छा सेल है और दोनों मोस्टली एसी ड्रिवन ब्रांड्स है। IF भी देखोगे तो इट इज मोस्टली इनटू वॉशिंग मशीन्स एंड पार्टली इनटू एसीज। एसीज में बहुत स्ट्रांग नहीं, बट वॉशिंग मशीन दे हैव गॉट वेरी गुड पेनिट्रेशन। और आप अनलिस्टेड में देखो तो सैमसंग है, बट सैमसंग का 70-80% रेवेन्यूज मोबाइल फोन से आता है और एलजी तो है ही नहीं मोबाइल फोन्स के अंदर। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ बेचता है एक्सेप्ट मोबाइल फोन्स। और मोबाइल फोन्स के मार्जिन भी अलग है नो। लेट्स से वीवो, ओप्पो, दीस गाइस आर मेकिंग 3% पैट,
सैमसंग इज मेकिंग 10-11% पैट, तो वो मार्जिन का प्रोफाइल बहुत अलग है। आप किसी और कर लो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि यार इनका कोई कंपेरेबल नहीं है, एप्पल टू एप्पल कंपेरेबल। आईफोन में तो दिखा है उसका कोई दिक्कत नहीं, बट दिस आर नॉट कंपेरेबल पेयर्स। तो इनके मार्जिन सस्टेनेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट द फ्यूचर जो पास्ट ट्रेंड था वो कहता है कि इतने मार्जिन के पहले हुआ करते थे, जो आईपीओ आने से 5-6 साल पहले की बात है। सो इसको ये वन टाइम प्रॉफिट है, आई डाउट दिस शुड कंटिन्यू, मुझे नहीं पता, बट आइडियली जो मुझे दिख रहा है इट शुड कंटिन्यू। और मैनेजमेंट ने ये भी हिंट किया कि अनदर 1.5 to 2% का हमारे पास रूम है अगले 2 साल में। सो मैनेजमेंट का तो यही बोलना है कि हाँ यार, हम इससे भी हल्का हल्का सब बढ़ते रहेंगे, नीचे आने का तो हमको चांस नहीं है, जो उन्होंने 2 इंटरव्यूज में बोला है। तो ये पब्लिकली कोई मेरी मन की बात नहीं है इसके अंदर। कंपनी बुक्स पे एकदम जीरो डेट है, कंप्लीट डेट फ्री कंपनी, मतलब ग्रॉस डेट जीरो, दोनों पे जीरो डेट है, और कंपनी के बुक्स पे 5400 करोड़ प्रिसाइजली कैश पड़ा हुआ है। अब इनका मैं Q1 नंबर्स की बात करता हूँ कि आप पे थोड़ा अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा। Q1 का नंबर इनका 6337 करोड़ का रेवेन्यू आया और 513 करोड़ का पैट आया। अगर आप रेवेन्यू में देखोगे ना तो 2% का डिग्रोथ है और पैट में 10-15% का डिग्रोथ है। अब इसका क्या रीजन था? अगर आपने रिसेंटली देखा होगा ना सर, एसी की कंपनियों में अच्छी खासी पिटाई हुई स्टॉक्स पे, 20-30% वन स्ट्रोक है। आप ओडीएम कंपनियां देख लो, ओईएम कंपनियां देख लो, या फिर आपके प्रॉपर कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज देख लो, सब में बड़ा अच्छा कट है। पीजी इलेक्ट्रो देख लो, आप अंबर तो कुछ अलग रीजन से बढ़ रहा था, बट स्टिल उसमें भी हल्का से कट आया है। आप वोल्टास देखो, आप ब्लू स्टार देखो, उनके अंदर कट्स अच्छे खासे आए हैं, अब बहुत सीवियर कट्स है। तो जो इनका Q1 में जो नंबर्स है फॉर द एसीज बड़े खराब आए, बट स्टिल कंपैरेटिवली टू ऑल दिस गाइज इवन हैविंग अ बेटर बेस, एलजी के नंबर बहुत खराब नहीं थे, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा हिट आया। अभी इस पे पहला सवाल ये है कि क्या ये साल भर में ड्यू टू दिस कट जो आपको पैट में दिख रहा है, रेवेन्यू पे तो शायद मैच कर ले, डू यू फील कि मुझे लगता है कि ये पैट में एटलीस्ट FY25 का नंबर मैच करेगा? इसके ऊपर आपको दो चीजें बताता हूं। फर्स्ट, जीएसटी कट अभी हुआ है, तो Q2 तो रहेगा, बट Q3 विल बी वेरी बम्पर। ठीक है, दो चीजें, एक तो फेस्टिव सीजन का पेंटअप डिमांड, और दूसरा रहेगा आपका जीएसटी कट्स। तो इनका जो Q3 में पेंटअप इनका 5 से 7% का एडिशनल, मतलब Q3 मतलब QOQ YOY, मतलब Q3 ऑफ FY26 फ्रॉम FY25 शुड बी एटलीस्ट 7 to 8% हायर ऑन मिनिमम साइड, वेरी मिनिमम साइड देन यूर एक्सपेक्टेड। मतलब नॉर्मली कंपनी 8-10% से ग्रो कर रही है, तो 6-7% का एडिशनल डिमांड दैट टाइम, मतलब टोटल 15-17% का ग्रोथ फॉर Q3 एटलीस्ट। तो ये जो आपका इंक्रीमेंटल जो अराउंड अराउंड बनना चाहिए, 700-800 करोड़ का रेवेन्यू बनना चाहिए, तो ये आपका बढ़ जाएगा, और इससे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो आई फील रेवेन्यू पे ये बीट मार देगा 20, मतलब आई एम सेइंग कि उससे ज्यादा ही करेगा, 25 से ज्यादा रेवेन्यू। और पैट करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर रेवेन्यू से उससे ज्यादा कर रहा है तो होपफुली पैट भी उतना आना चाहिए। रीजन बिंग इनका प्रीमियमाइजेशन, आप अगर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखोगे ना, तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो इनका रेवेन्यू है वो बढ़ा है फॉर Q1 एटलीस्ट। वो मार्जिन कम आए होंगे, बट वो कवर अप हो जाएगा। और दूसरा ये ना कि 88% यूटिलाइजेशन पे बैठे, इनके दो फैसिलिटीज का मिला के 88% है। तो यहां से ना यार इनका जो कहते हैं ना, आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छे से आएगी ना। कोई भी प्लांट जब 85% के ऊपर 80% के ऊपर चले जाता है ना, ऊपर का जो पैटी होता है मोस्टली आपका, अगर मैं ये कॉस्ट कॉक्स निकाल लूंगा तो ऊपर का प्रॉफिट ही रहता है। सो आई फील एफिशिएंसीज आ जाएगी और FY26 विल बीट। बट आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि FY26 के रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ नहीं आने वाले ऑफ दिस कंपनी। रीजन बीइंग एसीज आर स्ट्रगलिंग, Q3 में शायद थोड़ा पिकअप आ जाए, बट Q1 Q2 विल स्ट्रगल एटलीस्ट फॉर एसी पॉइंट ऑफ व्यू। इवन वॉशिंग मशीन हैव बीन स्ट्रगलिंग, बट बाकी जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो अच्छा कर रहे हैं। एंड Q3 से आप Q2 के सेकंड हाफ से कह लो और Q3 से कह लो, रूरल डिमांड विल आल्सो पेंट अप। सो इनका 26 में ग्रोथ आ जाएगा, बट जितना 25 में आया वो डबल डिजिट का शायद वो ना आए, जो मेरा अजम्पशन है। आई फील 4 से 6, 5 से 7% अराउंड अराउंड इसका ग्रोथ आना चाहिए टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। अब मैं आपको वैल्यूएशन पे बोल लेता हूँ। सो कंपनी इज कमिंग एट 77,380 करोड़ मार्केट कैप, जो होता है $9 बिलियन, मैसिव मार्केट कैप। इफ आई जस्ट रिकॉल, इनका पहले आईपीओ एक्सपेक्टेड था 1,15,000 करोड़ के वैल्यूएशन में, जो पहले, इट इज ऑल्सो पब्लिकली अवेलेबल डेटा। तो वहां से तो यह अच्छा खासा ऑलमोस्ट 30% नीचे है, 30 से भी हल्का से ज्यादा ही होगा, 30 से 2-4% ऊपर नीचे। तो FY25 पे 35.1 का पी है, ठीक है। दिस इज प्रॉपर पैट। हाँ, 26 पे अगर मैं देखूं तो व्हाट आई पर्सनली एक्सपेक्ट इज
5 to 6% of a top line growth एंड सिमिलर या फिर 1% लोअर शुड बी द पैट ग्रोथ. रीजन बिंग केपेक्स करेगा, उसमें इनका ऑलमोस्ट 500 600 700 करोड़ का आपका केपेक्स हो रहा है, उसके अंदर आपका खर्चा होगा. देन अनदर वुड बी ये लोग आई गेस कुछ और एक दो छोटे सेगमेंट में केपेक्स कर रहे हैं. इनका कहते हैं ना अभी मार्केटिंग लेवल पे भी एक्सपेंसेस बढ़ना चाहिए, व्हाट आई एम अज्यूमिंग. एंड ऑल्सो द एफिशिएंसीज इन द Q1 में आपका पैट 100 करोड़ उड़ गया था, तो पहले आपको 100 करोड़ कवर करना है, फिर आपको ग्रोथ देनी है. सो ओवरऑल में इसको देख के शायद जितना रेवेन्यू उतना ही प्रॉफिट, बट दैट आई एम अज्यूमिंग, या फिर आधा पौंड का नीचे. तो 26 के हिसाब से इट इज कमिंग एट रफली 33.5 का पी. ठीक है, अभी इतनी बड़ी जो कंपनी होती है और वो भी इतने बड़े साइज की, इतना एमएनसी का एंगल इसके अंदर 26 में ग्रोथ नहीं आना, तो सब इसको 27 पे वैल्यू करेंगे. इंस्टीट्यूशन तो 28 पे वैल्यू करते, स्टिल वी आर टेकिंग 27. तो इसके हिसाब से आई इजीली एक्सपेक्ट 12 to 14% टॉप लाइन ग्रोथ एंड रिलेटिवली बेटर पैट ग्रोथ. तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स आ रहा है ये 27.5 से 28 टाइम 27 पे. अभी इसके मैं आपको 3 केस रखता हूँ. फर्स्ट वुड बी बेयर केस, सबसे खराब होगा 30 टाइम्स 27. आपका न्यूट्रल केस रहेगा 35 टाइम्स, बुल केस रहेगा 40 टाइम्स 27, विच इज वेरी रीजनेबल. आप पीयर्स की बात करो तो चारों पीयर्स चल रहे हैं अराउंड 35 से 40 के बीच में 27 पे. वन इज ट्रेडिंग 30 to 33 टाइम्स. तो मीन अगर मैं निकालू तो कुछ 36 37 टाइम 27 पे सब चल रहे हैं एज पर द ब्रोकरेज हाउसेस. अभी इन सबके मैंने इंडिविजुअल खुद नहीं निकाले, बट आई एम अज्यूमिंग, एंड मैंने जो ब्रोकरेज हाउसेस लिए वो टॉप के सारे फॉरेन प्रॉपर ब्रोकरेज हाउसेस, तो आई फील दे आर क्रेडिबल. तो उसके हिसाब से इफ यू जस्ट लुक, this company is positioned as a premium company. It is a direct beneficiary of India's increasing premiumization, rural demand, demand towards consumer electronics, increase in the wallet share of ACs per household, washing machines per household, टेलीविजन अपग्रेडेशन, ये सारे का ये डायरेक्ट पेयर है. एंड इन सबसे इसका सब हर चीज बेटर है. 30 साल की लेगेसी है इनकी, 28 साल प्रिसाइजली. तो आई फील उनको इसके हिसाब से तो वैल्यूएशन मिलना ही चाहिए, शायद उसे 10% प्रीमियम मिले, कोई बड़ी बात नहीं है. सो इसके हिसाब से जो आपको मैं बताता हूँ ना कि कितना अपसाइड निकलता है एज पर ईच केस. बेयर केस के हिसाब से निकलता है 9%, विच इज एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव. न्यूट्रल केस पे निकलता है 26% और बुल केस में निकलता है 42%. सो इवन इफ आई मीन इट 25-27% इसका एक साल टाइप का मतलब क्लियर अपसाइड आता है. सो अभी इसका थोड़ा निगेटिव्स पे आ जाता है. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज पे कुछ 2-2.5 हजार करोड़ की, वो मैंने बहुत नहीं पढ़ पाया मैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट जो मैंने पढ़ा थोड़ा पुराना है. एंड आई फील गिवन द साइज ऑफ द कंपनी, इवन 2.5 हजार करोड़ इट वुड मैटर, बट नॉट बियॉन्ड द पॉइंट. इसके बाद है रॉयल्टी. आप सबको पता है एमएनसी कंपनी रॉयल्टी चार्ज करते हैं, 1.8% का रॉयल्टी है. एंड आरएस में दिया हुआ है कि ये 5 तक भी जा सकता है, बट मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि एटलीस्ट अगले 2 साल के लिए यहाँ से चेंज हो गए. उन्होंने क्लियरली 2 इंटर में टीवी पे बोला हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो इन द पब्लिक डोमेन, तो वी कैन अज्यूम कि अगले 2 साल चेंज नहीं होगा. तीसरी एक चीज है कि जीएसटी की कुछ चीजें पड़ी इनके अगेंस्ट. और चीज में देखूं तो बस इतना ही है मोस्टली. और इसके बाद अगर मैं कुछ और अच्छी चीजों की बात करूं तो इनका डिजाइन ऑल्सो डिस्कस कि हम डिविडेंड्स भी देना चाहेंगे, क्लियरली बोला उन्होंने. उसके बाद रूरल प्रीमाइजेशन की डायरेक्ट स्टोरी है. पेरेंटेज बहुत बड़ा स्ट्रांग है इनका. उसके बाद जीएसटी कट शुड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द डिमांड, ओवरऑल डिमांड. सो मेरा इस पे व्यू बड़ा सिंपल है, इसको बिल्कुल अप्लाई करना है. मतलब सब बेच के अप्लाई करना है, बिल्कुल अप्लाई करना है, ज्यादा हिचकिचाना नहीं है. आपको लिस्टिंग इन के लिए लगाना है, मीडियम टर्म के लगाना है, शॉर्ट टर्म लगाना है, लॉन्ग टर्म लगाना है, 10 साल के लिए आपको लगाना है, इसमें बिल्कुल लगाना है. इस पे मेरा व्यू ये रहेगा ना, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक 20-25% बढ़ जाए. शॉर्ट टर्म प्लस लिस्टिंग, मतलब एंड आई पर्सनली फील ना कि इतनी 30-40% लिस्टिंग की बात हो रही है, शायद उतना नाम मिले, अगर मिले तो मैं खुद खुश हूं कि मुझे पता है मुझे अलॉटमेंट मिलेगा. ठीक है, सो इसके अंदर आपको होप्स रखने की मेरे को 15 से 20% चाहिए. क्योंकि आप एक बात समझो कि आपको अगर स्टॉक आईपीओ प्राइस से 15% ऊपर मिल गया और आप अगर वहां पे ले रहे हो, एंड गिवन द थिंग्स आर ऑन अ राइट ट्रैक, यू कैन मेक अ लार्जर लेवल. सो दैट्स अ सेपरेट पॉइंट ऑल टुगेदर. बट आई फील इसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन कम रखो, ज्यादा मिले खुश हो जाना, बट इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई करना है. एंड आई फील द पीपल हु आर गोइंग टू गेट, मोस्टली एवरीवन इज गोइंग टू गेट अलॉटमेंट. कितना मिलेगा, दिस इज अ क्वेश्चन. सबको कुछ ना कुछ तो पक्के से मिलेगा. सो दिस शुड हेल्प टू मेक द दिवाली अ बिट बेटर. एंड इट इज अ क्लियर अप्लाई फ्रॉम माई एंड. Got it.
Thanks, Tanmay, for this. एक तो question है यार. First question is related to royalty. How much royalty do they pay right now? Is it supposed to increase? From what 1.9% है I'm अभी, seeing. 1.9% है. इन्होंने आरएस में लिखा कि 5% भी जा सकते हैं, विच इज इनसेन. बट मैनेजमेंट ने क्लियरली टीवी पे 2 इंटरव्यू से बोला कि हम अगले 2 साल एटलीस्ट इसको बढ़ाना नहीं चाहेंगे. Got it. But 2% of sales would always go as royalty to the parent 1.8 group, correct? प्रिसाइजली. हाँ. 1.8. Okay. And second question is, do they do in-house manufacturing or do they do contract manufacturing? What थ्री is the फोर्थ इज split? इन हाउस एंड 1/4 इज आउटसोर्स. दिस इज अ रफ नंबर, 2-4% ऊपर नीचे रहेगा. बेटर देन द Got it. पियर्स. And export कितना है? And what is the trajectory for export? Does export have higher margins? अभी आई गेस व्हाट आई रिमेम्बर, मैंने देखा ना कि 7% टाइप का इनका एक्सपोर्ट है, 6 से 7%. एंड दिस शुड इंच अप टू लो डबल डिजिट. मैनेजमेंट ने बोला है कि हम FY 28-29 तक इसको हम लो डबल डिजिट तक लेके जाना चाहेंगे. And does that enjoy a higher? अरे ऑनेस्टली नहीं, उसका मेरे पास जवाब नहीं. बट इफ वी ऑल आर टॉकिंग ऑन एक्सपोर्ट्स एंड स्पेशली टू द यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो भी जहां पे भी हो रहा है, वी अज्यूम इट शुड हाई एटलीस्ट हैव लाइक 2% बेटर एबिटा, व्हिच इज अ वेरी फेयर अजम्पशन. मतलब इसके मेरे पास कोई जवाब नहीं है. नाइदर किसी ने इसका इंटरव्यू मैनेजमेंट में पूछा भी है और नाइदर आरएसपी Got में it. लिखा है. सो आई Got it. अज्यूम इट शुड बी हायर. Okay. And then, like, have the margins crashed in Q1 itself? Like, are the margins lower? Yes. What are sustainable Yes, margins yes, which they you are think? lower. Yeah, they are Like, lower. Last FY 20. is it at 34x or is it higher? Like, how do you look at, let's say, at FY 26? Because 6 महीने in है, right? हम FY 26 में. So, is that number supposed to go up? Although there is a lot of scope when you look at it in terms of comparing it to peers, right? But वो अभी कहाँ stand कर रहा है? गॉट इट. सो Q1 में मार्जिन जो था वो 11.4% EBITDA है, जो पहले पूरे साल का 12.7 12.8% टाइप्स था FY 25 में. तो वो नीचे आया है. दो रीजन, एक तो पुअर सेल्स ऑफ एसीज, कंपैरेटिवली लोअर सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स. उनका Q1 है यार, इनका रेवेन्यू वाइज नहीं बट मार्जिन वाइज सभी का वीक ही होता है. यू चेक फॉर एनी, मतलब जो पियर्स दीज आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल इवन ऑफ दोस. Q1 इज जनरली वीक. तो आई फील पूरे साल में ये अपने मार्जिन को आई गेस 0.1 0.2 मतलब 10-20 बिप्स को छोड़ दो मैं तो मेजर इट शुड सस्टेन. एंड आई फील कोई बड़ी बात नहीं है, 0.1 बिप्स मतलब 10 बिप्स ज्यादा ही है फॉर द होल साल. एंड इफ आई कंसिडर 26 का एक्सपेक्टेड अर्निंग, जो मेरा कैलकुलेशन आया था 33.5 पे आ रहा है, 33.5 टाइम्स 26. Got it. So there is good space करेक्ट. left बट on the इफ table अगर then. 27 पे आ जाए तो मैं बहुत ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि 26 में तो एवरीवन नोज कि इसका तो शायद दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन की प्राइसिंग थोड़ी कंजर्वेटिव करी गई, नहीं तो ये सब बहुत महंगा आने वाला था. Yeah. That is what I also think. Plus, it's a big size IPO, right? End of the day, 11,000 crore का IPO है, right? So there would be pressure, right? I somehow think that there would be pressure, but no harm to apply, right? And I am assuming because Tata Capital is not like, at least in terms of, I don't know, like is not there's not a lot of chatter with respect to Tata Capital, and also finance companies somehow don't list very well, right? So that is also overhang on Tata. So there would be a lot of money which will be going into this simply because people will kind of start creating that boomerang, right? One after another. So I just expect it to be super subscribed, right? Would that be correct? इसमें दो तीन चीजें है. फर्स्ट वुड बी टाटा में ये है ना यार कि प्राइसिंग ऐसे बहुत सस्ती नहीं है कि लोग कूद के पैसा डाल देंगे. मतलब सबको पता ही आईपीओ प्राइस नीचे भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. सो पीपल आर नॉट वेरी एक्साइटेड. सेकंड, द इन्वेस्टर interest and the appetite for LG is way significantly higher than Tata. And this I can say actually, आप at least the admins हो कि हमने 15 दिन पहले डिस्कस कर लिया था ये कि the anchor book of LG should be much better than Tata, and the appetite towards Tata is comparatively lesser. We had already discussed this internally. And अगर आप देखो ना वैल्यूएशन वाइज, इफ आई जस्ट लुक एट कि टेबल पे कितना रखा है, एलजी हैज बीन वेरी गुड एटलीस्ट. और मैंने इसमें सिंपल कैलकुलेशन करा हुआ है, जो मेरा सबसे बेयर केस है, विच इज 30 टाइम्स 27, उसके हिसाब से 9% निकलता है, 8.8% प्रिसाइजली. तो आई एक्सपेक्ट यार 9% तो बनना ही चाहिए. मतलब अगर 30 टाइम 27 नहीं किया तो क्या किया फिर, मतलब दैट इज गिविंग लाइक 20% डिस्काउंट ओवर द पियर्स विच आर कंपैरेटिवली ऑफ अ लेस प्रोफाइल देन एलजी. तो
उतना तो बनना चाहिए. 9% is what my assumption. Like, and I personally feel 15% type is a very reasonable expectation in the very short term. Got it. Understood. And like anchor book की हमने बात बहुत कर ली, बहुत right? अच्छी. बेस्ट बेस्ट And ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑफ द ईयर. although like FIIs अभी भी कम है, right? Comparatively, FIIs are बेटर still देन द expected अदर्स, about it. बेटर प्रोपोर्शन देन द Yeah, अदर्स. better than others. Yeah, टाटा से तो that 100 I गुना agree बेटर with था. you. Understood. One last question, and maybe this is what you have seen or not, but what is the expected subscription ओके. for यार मतलब this? मैंने I इसको was बहुत नहीं doing देखा rough है. calculation. I'll Hmm. just give Uh-huh. very rough numbers. Retail में I expect 2.8 to 3.1 times in terms of applications. Money से 3.5 से 3.7 चला जाएगा. And आप हमारे जी बिजनेस के पैनलिस्ट साहब ने भी बोल दिया कि आप 13 के 13 लॉट लगा दो, रिटेल के अंदर आपको मिल जाएगा. So I believe in these words I've got decent-ish value. So 2.9 to 2.8 to 3.1 times in terms of applications and 3.5 to 3.7 times in terms of money. This is retail. मुझे 1 मिनट दो, एक्चुअली लिख के रखा है यार. आई जस्ट टेक माय सेकंड फोन. हाँ, वो मैं भी वही खोल रहा हूँ. लाइक आई हैव आल्सो रिटन इट डाउन. तो मैं वो देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली मेरे पास है एप्लीकेशन, एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि उसको अवेलेबल कितनी एप्लीकेशंस हैं. मे बी टू स्टार्ट विथ रिटेल 70 lakhs इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड अपेरेंटली. द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई एम सीइंग कि कितनी एप्लीकेशंस हैं रिटेल. हाँ, सो रिटेल में 27 lakh एप्लीकेशंस हैं. सो समवेयर अराउंड 3x लाइक यू सेड. हाँ, मेरा बिग एच एन आई एस एच बता एन दो, मैंने आई लिख के रखा है. एक्सपेक्टेड. 3.8 से 4.3 टाइम्स बिग एच एन आई एप्लीकेशन वाइज, एंड अप्रॉक्स 18 to 20 टाइम्स in terms of money. 20 to 21 times in terms of money and 3.8 to 4.2 times application wise big HNI. Small HNI बता देता हूँ. कितना आ रहा है? 14 times small HNI. 1.4. मेरे को लग रहा है ज्यादा जाएगा यार. एटलीस्ट द नंबर विच इज सेइंग इज 5 lakh प्लस एंड 27,000 एस एच इसके एन अंदर आई एक है. ये सो भी चीज है ना यार कि टाटा में बिग एचएनआई कोई नहीं डालना चाहता, बट स्मॉल एचएनआई बहुत लोग डालना चाहते. तो मैंने वो देख के इसका 0.2 0.3 काटा. नहीं तो एक्चुअली आई ऑल्सो फील कि 15.5 16 जा सकता है, बट सो आई टेकन लाइक 14 टाइम्स नंबर. So big HNI also I think would be 5x in LG. SHNI would be 18x, something Oh, like that, and 18 would be retail very would be aggressive, 3 man. 4x. It would be aggressive. 5 lakh बोला है, लिखा है किसी ने. बट Let's एक see. ये भी But चीज है yeah, ना it यार would कि be द very heavily फंडिंग फॉर subscribed. टाटा टुडे आफ्टरनून आइडियली हैज बीन कैंसल्ड, एंड वो एलजी के लिए इट कंटिन्यूज टू हैपन यार. जो मैं देख रहा हूँ ना यार, लोग सब कुछ पोर्टफोलियो खाली करने के लिए बिग एचएनआई डालना चाहते हैं एलजी के अंदर. एंड व्हाट आई नो इज कि इसका क्यूआई भी 1.5 से 2 लाख करोड़ जाने इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. तो इट वुड क्रिएट हैवॉक इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. मतलब रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स आने चाहिए. तो आई अज्यूम it should outperform our expectations for sure. Yep. QIB कितना है मैं वो देख रहा हूँ. What is the size of QIB? Huh. Size QIB of 2200 QIB 2200 is करोड़ रहेगा ना अप्रोक्स. 2200, 2250, 2200. 2300 टाइप्स. So हाँ तो that's 80 so टाइम बोल रहा हूँ मैं, around 70-80 टाइम 70x. बोल रहा हूँ QIB. Yeah, crazy. क्रेजी है, रियली ठीक क्रेजी. है. Yeah, so that is with respect to LG Electronics. I would be applying. मतलब मुझे It is लगता है the ना issue इसका with QIB 3 टाइम्स ऑफ टाटा आना चाहिए. let's see what happens. That is with respect to LG Electronics. Sachin, do you have anything to add? Oh, I can't see Sachin. I think Sachin has left for the day. He did his Mittal sections and then left. But yeah, that is with respect to LG. We have covered today's episode. We'll come back next week with respect to a few more IPOs. We'll do Canara and whatever other IPOs. I know there are a few small नेक्स्ट वीक companies, क्या 3 Rubicon or मेन बोर्ड्स और something. एक एसएमई, करेक्ट? तो हाँ, correct, कैनेरा correct. So बंधु we'll है, do that. रूबिकॉन है, एंड योर वो मिनरल वाली कंपनी है. 4. Correct. और ये अनंतम पढ़ा है आपने, इनविट वाला? लाइक जस्ट केम टॉप ऑफ मोमेंट. नहीं नहीं पड़ा. हाईवे हाईवे हाँ वाला हाँ, राइट. वही इनविट वाला. हाँ, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. लास्ट वाला बहुत अच्छा किया एनविट.
वो जो आया था करेक्ट। REIT रियल एस्टेट वाला हैदराबाद वाला, सो ये भी पढ़ना तो पड़ेगा, बट सत्वा वाला हैविंग कह रहे हो ना, ब्लैक स्टोन वाला? हाँ करेक्ट करेक्ट, दिस इज द 400 सीआर छोटा ही हम्म। अमाउंट कितना है इसमें। ठीक है, देखते हैं, we'll probably figure out, but yeah, when is this closing? This is closing day after tomorrow, so we haven't done it, but yeah, we'll see if there's anything we'll post, but yeah, just give me 1 minute while try and see if there are any questions. Sorry, expected subscription we have figured out. Can we apply 310 price for Tata? No. It will still be 1x subscribed for sure. Retail QI भी से हो जाएगा तो lower price band पे नहीं मिलेगा. Tata crying in the corner. It's just that it is what it is. Retail 3x में 81 lakh application कैसे? I don't know. I didn't understand it. But yeah, these are all rough subscriptions. We could be completely off. Let's see what when it comes. With that, we are towards the end of the episode. Just want to highlight again that if you haven't joined our Instagram, the link is in the pinned comments. Go ahead and follow us on Instagram. We'll try and put something on LG on it as well if Tanmay can do something. But yeah, that is with respect to today's episode. Thank you so much everyone for joining. We'll see you guys on the weekend. Bye. थैंक यू एवरीवन।